A very good morning to all class 11th. Today we'll start the second video of this chapter, The Ailing Planet, the Green Movement Role, from your book Hornbill. And as you know that we have already discussed the previous paragraphs of our chapter. So today we'll start our chapter from this paragraph. And this paragraph here, and before than this I would like to tell you about the previous things, that the ailing planet, the green movement role, is you can say that a sad commentary on the gradual deterioration of our environment, and the planet is no more pleasant place for habitation now, because we are human beings, we are not doing good with our earth, and we polluted the earth so much, and we are not using the resources which are given by us from our earth. So the like fisheries, forests, grasslands and croplands, so all these needed to be preserved. इन सबका preserve या protect होना बहुत ज़रूरी है. So here in this chapter, so the green movement role is you're the only hope for this planet and survival of human race. So let's read the chapter here. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in the different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards as the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million living species still languish unnamed in ignominious darkness here. So what was here in this paragraph here, students or writer want to convey that जाम्बिया के जो एक कैपिटल है, यू कैन से दैट जाम्बिया की जो राजधानी है लुसाका, वहाँ के एक केज में या एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है, केज है, जहाँ पर एक अगर आप देखें वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर आप एक नोटिस को रीड कर सकते हैं, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, बट इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, लेकिन उस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, बल्कि एक मिरर लगा हुआ है. बट अ मिरर वेर यू सी योर सेल्फ, बट एक मिरर है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, जिसमें अपने आप को देखने के बाद यहाँ क्या कहना चाह रहा है राइटर, दैट जाम्बिया जो है, जो कि लुसाका की एक राजधानी है, वहाँ पर जो एक यू कैन से दैट चिड़ियाघर है, वहाँ एक केज है, और उस केज में लोग अपने आप को देखते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, और उस प्राणी के लिए कोई वहाँ पर कोई मतलब कोई एनिमल या कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे उस केज में. वो केज खाली है और उसमें सिंपली एक मिरर रखा हुआ है, और उस मिरर में अगर हम खुद को देखें तो हम खुद ही दिखाई देंगे. ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज इस दुनिया में इवन कोई भी एनिमल आप ले लो, तो कोई भी एनिमल किसी भी तरीके से पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाता है. ओनली वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी pollute the earth, we are responsible for that deteriorating condition of our earth, which is like gradually So thanks to the efforts of number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned up in most dangerous animal in the world. इसके लिए वो कह रहा है कि जो बहुत सारे देश हैं, उनकी सारी जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, उनको धन्यवाद, उनको थैंक्स कहना होगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, दैट इज़ ह्यूमन, दैट इज़ मनुष्य को एक नई आप कह सकते हैं अवेयरनेस, या उस अवेयरनेस को लोगों के मन में जगाया है, और उसने उस
डेंजरस एनिमल के बारे में वर्ल्ड को पूरा बताया। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, और ये साथ साथ कहा है कि रियलाइज़ किया है, स्वीकार किया है कि ये जो डोमिनेशन सिस्टम है किस तरह इसमें टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, किस तरह ये पार्टनरशिप बेस्ड है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड about 1.4 million living species. So यहाँ क्या बताया गया है कि साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी कैटलॉग, दैट मीन्स साइंटिस्ट जो है उन्होंने पहले ही जो भी प्रजातियां हैं उनकी उन्होंने कैटलॉग या मीन्स लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, जिससे मानव या जो जाति है वो पृथ्वी पर रहती है अभी भी, या जिन जातियों की उन्होंने या प्रजातियों की उन्होंने कैटलॉग प्रिपेयर नहीं करी है वो स्टिल उनकी कैटलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनका क्या करेंगे, somewhere or other the estimates vary widely regard the still uncatalogued living species, उनकी भी लिस्ट बनाएंगे। एंड फिर वो बायोलॉजिस्ट रेकन, फिर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो जीव विज्ञान को रीड करने वाले जो लोग होते हैं बायोलॉजिस्ट, वो उसकी गणना करेंगे यानी गिनती करेंगे, और उसमें उन्होंने ये पाया कि करीब 3 से 100 मिलियन कुछ ऐसी जीवित प्रजातियां अभी भी ऐसी हैं जिनका कोई नाम नहीं है, और वो इस यू कैन से दैट इस लैंग्वेज इस कि स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड मीन्स अभी भी उनका कोई नाम नहीं है, वो गुमनाम या बेनाम रह रही हैं। एंड दिस इज़ लाइक द इग्नोमिनस डार्कनेस, यानी कि एक अपमानपूर्ण अज्ञानता या अज्ञातता की स्थिति में वो लोग अभी भी जी रहे हैं। So one of the early international commission which dealt the inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question, are we to leave our successors as scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economical Prospects, points out that the Earth's principal biological system are 4 fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. So here what writer wants to convey here, that one of the early international commissions, कुछ ऐसे स्टार्टिंग के इंटरनेशनल कमीशंस हैं विच डेल्ट द इंटर एलिया, जो कि किसके संबंध में डील करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के जो कि साथ साथ यू कैन से दैट जिसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड डील करते हैं। एंड ब्रांड आयो, जो ब्रांड कमीशन है, विच हैव डिस्टिंग्विश इंडियंस एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिन्होंने इंडियंस को या एक सदस्य के रूप में विख्यात भारतीय थे, लाइक जिनका नाम है मिस्टर L.K. झा। सो फर्स्ट जो ये ब्रांड रिपोर्ट है, रेज द क्वेश्चन, इस रिपोर्ट में क्वेश्चन उठाया गया कि क्या हमें दैट वी लीव आवर सक्सेसर्स, मीन्स हमें अपने उत्तराधिकारी, जितने भी हमारे जो सक्सेसर्स हैं यानी जो उत्तराधिकारी हैं, क्या उनके लिए एक ऐसा प्लैनेट छोड़ना है विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर देम, या फिर वो पूरी तरह जो कि यू कैन से दैट स्कॉच्ड मीन झुलसा हुआ। सो योर द वर्ड इज रिटन योर स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट पुट और मार्क योर। सो स्कॉच्ड इज व्हाट, झुलसा हुआ। सो क्या हमें एक ऐसा प्लैनेट अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ना है, और यू कैन से दैट विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर यू कैन आर नेक्स्ट जनरेशन्स। तो क्या हमें उनके लिए ऐसा प्लैनेट छोड़ना है, हमारे सक्सेसर्स के लिए या हमारे उत्तराधिकारियों के लिए, या जिसके आगे रेगिस्तान बढ़ रहा हो, या ऐसा प्लैनेट एडवांसिंग डेजर्ट्स। सो इट इज़ रिटन ओवर हियर एडवांसिंग डेजर्ट मीन्स या हमें डेजर्ट्स छोड़ने हैं, impoverished landscapes and ailing environment, क्या हम उनके लिए ऐसा लैंडस्केप छोड़ना है जो कि दरिद्र हो चुका हो, impoverished, and
ऐसा हम एनवायरनमेंट छोड़ना है विच इज़ एलिंग, जो कि पूरी तरह जहाँ पे कोई ग्रीनरी ना हो, कोई वेजिटेशन ना हो। यर द एनवायरनमेंट लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट यर मीन्स जहाँ पे कोई ग्रीनरी ना हो, कोई मीडोज ना हो, कोई वेजिटेशन ना हो। क्या हम ऐसा प्लानट छोड़ना चाहते हैं? So Mr. Lester R. Brown in his thoughtful book, so Mr. Lester R. Brown ने अपनी thoughtful book जिसका नाम है The Global Economical Prospect में बताया है that कि the earth, the four principles of